अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विंटर्स एंड वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। सो हैव यू अटेंडेड previous classes? First tell me. If you haven't still, so please attend previous classes in order to have the complete grip on this very language learning process. Okay, today what would we discuss? We will discuss noun and its kinds. I have discussed noun in my previous class, but not thoroughly, not on the whole. ठीक है, इसकी काइंड्स हमने डिस्कस नहीं की थी. टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ नाउन and then I will discuss adjective and its kinds. Okay, noun, then pronoun has been discussed previous class. You can attend that class, and today we will discuss noun and its kinds and adjective and its kinds. Okay, so first of all, the thing is this: essential of English language. What are the essentials? Do you have any idea about it, students? What are the essentials? Essentials are actually the main components of parts to have your grip or command on understanding to learn a particular language. ठीक है, कौन कौन से वो प्रोसीजर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है? मेन पार्ट्स कौन से हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू हैव योर कमांड ऑन पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग? सो grammar is one of the essentials of spoken English. Grammar is what? The study of sentence structure. Okay, sentence is what? Combination of words. When you join so many words within one sentence, that is called proper whole sentence. Okay, अल्फाज का मजमुआ, collection of words, that is called sentence, and study of that sentence structure thoroughly, that study is called grammar. Okay, now when we discuss grammar of any language, however it is English language or any other language, Urdu, Punjabi, Persian, Italian, French, any kind of language, there are some ups and downs. ठीक है, जिसको हम कहते हैं अरबी के उर्दू के ज़ेर ज़बर पेश, वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं. ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ सेंटेंस. आपके सेंटेंस में जैसा भी आपको यूज़ हो रहा है उसके मुताबिक अपने वर्ड्स को क्लासिफाई करना. दैट क्लासिफिकेशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच अब क्या हैं? नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर. फर्स्ट, नाउन. Noun is what? Name of any person, place or thing. That is called noun. किसी भी इंसान के, शख्स के नाम को, किसी जगह के नाम को, कोई विलेज है, कोई टाउन है, कोई सिटी है, कोई कंट्री है, ठीक है, कोई रिक्रिएशन प्लेस है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मॉस्क है, एनीथिंग, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, कोई क्लिनिक है, कोई पार्लर है. Name of place and thing, whatever it can be, anything. Name of place
person and thing is called noun. ठीक हो गया? It's clear? What is noun? Now, kinds of noun. अब noun falls into different categories. There are two kinds. Main two kinds: concrete noun and then abstract noun. Concrete noun is what? Noun is actually the name of person, place or thing. So when the names of person, place or thing can be in this order, they can be touched, seen, tasted, they are concrete noun. ठीक है? And abstract noun is what? When names of persons, place, things are such kind they cannot be touched, they cannot be seen, they cannot be tasted, they are abstract noun. जिन्हें आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, जिन्हें आप प्रॉपरली देख नहीं सकते, बस एक नाम है किसी भी चीज़ का, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते, उसका फ्लेवर. दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. नाउ फर्स्ट टाइप, concrete noun. It falls in more other categories, more kinds. ठीक है, अब हम उन kinds को डिस्कस करेंगे. वो kinds कौन सी हैं concrete noun की? ठीक है. Proper noun. Proper noun, these are the nouns, they are used to denote proper names of some person, place or thing. Okay? Like Faisal Masjid is in Islamabad. Faisal Masjid is name of place. This is proper name, proper full-fledged name of some place. Okay. Next you can say, if we take example of person, okay, Mr. Ali is doctor by profession. Mr. Ali is a what? Name of person, proper noun. Properly आपने यहाँ पे बता दिया कि ये जो डॉक्टर है जिसकी बात हो रही है, who is he. इसके बाद हमें मज़ीद किसी एलेब्रेशन की, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपरली एक नाउन जो है वो डिनोट हो गया, डिफाइन हो गया. देन एनीथिंग यू कैन से, लाइक you are studying functional English or the learner's communication skills is very comprehensive book. Okay, so now book is what? Thing. और जो हमने इसका नेम बताया है, फुल फ्लेज नेम बताया है साथ में उस थिंग का. ठीक है, जिसके बाद हमें मज़ीद किसी क्लैरिफिकेशन की या डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. फुल फ्लेज प्रॉपर नेम बताया आपने बुक का. कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ कम्प्रिहेंसिव बुक. फंक्शनल इंग्लिश इज़ कम्प्रिहेंसिव बुक. ओके, प्रॉपर नेम. और अब ये कौन से नाउन्स थे? दे कैन बी सीन, टच्ड और टेस्टेड. यस, कंक्रीट नाउन को फॉलो कर रहे हैं ना ये. नेक्स्ट आप देखें कॉमन नाउन. अब आ रहे हैं हमारे पास. कॉमन नाउन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड कॉमनली, नॉर्मली यूज होते हैं जो. ठीक है, लाइक दिस बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई लव रीडिंग नॉवेल्स. अब नॉवेल्स क्या है? नाउन तो है, एक कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है. मैंने कोई यहाँ पे हाई फाई
नेम नहीं मेंशन किया, पर्टिकुलर किसी नॉवल का प्रॉपर नेम नहीं मेंशन किया, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। द बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, कौन बॉय, कोई स्पेसिफिक पर्सन या पर्सनैलिटी का जिक्र तो नहीं मैंने किया, कॉमन बॉय, ठीक है ना, बॉय इज नाउन बट कॉमन बॉय। नेक्स्ट, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, हु इज दैट, किसी मैंने बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र तो नहीं किया, गर्ल का नेम नहीं मेंशन किया प्रॉपर फुल फ्लेज, तो क्या है, ये एक कॉमन नाउन। ओके, तो दीज आर व्हाट, इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन अब क्या हो जाते हैं, collective noun are actually the words they are used to denote whole class, whole category as one, standing as one on the whole, like army, parliament, police, और क्लास, क्राउड। कलेक्टिवली आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को सिमिलर काइंड की, उनको एज अ होल एक नाम दे देते हैं, लेकिन वो एक नाम, वो एक वर्ड, वो एक नाउन जो है वो होल क्लास की सारी चीज़ों को या इंसानों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लाइक क्लास, क्लास इज़ नॉट मेड ऑफ विद वन स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लास में एक स्टूडेंट तो नहीं होता, क्लास इज एक्चुअली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग होल क्लास which is having boys and girls, ठीक है ना, it can be a class of 10 students or 20 students or 30 students or more than it। तो पाकिस्तानी आर्मी इज ब्रेव, द आर्मी इज एक्चुअली व्हाट, कलेक्टिव नाउन है। अब इसमें किसी एक इंसान का जिक्र तो नहीं हो रहा, आर्मी में कोई एक सोल्जर तो नहीं होता, दे आर सो मैनी। सो ये आर्मी वर्ड एक्चुअली क्या कर रहा है, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। क्राउड इज वेरी लाउड, क्राउड क्या है, क्राउड कैन बी ऑफ एनिमल्स, क्राउड कैन बी ऑफ पीपल, क्राउड इज वेरी लाउड, बहुत शोर कर रहा है ये क्राउड, बहुत लाउड है, बहुत बिटर है, ये हार्श है। ये क्राउड जो है वर्ड नाउन, ये कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि ये कलेक्शन को शो कर रहा है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस, देयर इज नो वन पर्सन इन पुलिस, ठीक है, दैट इज वाई अगेन दिस वर्ड इज डिनोटिंग होल पुलिस, ओके, होल क्लास और कैटेगरी ऑफ पुलिस। ये एक वर्ड सारी क्लास को, सारी पुलिस को, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मतलब सेम कैटेगरी के पर्सन्स और थिंग्स जिसमें होते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द होल एक वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो एक वर्ड, वो एक नाउन जो है वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मटीरियल नाउन। मटीरियल इज व्हाट, a noun that is used to show any substance, stuff, material which is used
to make anything. That is material now. Material, iron, wood, water, silver, gold. I am wearing this ring made of gold. Gold is what? Material noun. ऐसा नाउन जो किसी भी किस्म के सब्सटेंस को, मटेरियल को, स्टफ को शो करता है, जिससे चीज़ें बनती हैं. ठीक है. यू आर वेयरिंग नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर. सिल्वर इज व्हाट? मटेरियल नाउन. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर व्हाट? They cannot be seen, touched or tasted. Such kind of things, such kind of states, such kind of qualities, such kind of emotions, you can say, they are called abstract noun. Now, in abstract noun, there can be emotions, there can be qualities, there can be states. Qualities like kindness, beauty, love, wisdom, honesty, courage, bravery. Okay, क्वालिटीज़ हो गई हमारी. नेक्स्ट हम जाएंगे इसके क्या हमने डिस्कस किया था क्वालिटीज़ के बाद? इमोशंस. इमोशंस किस टाइप के होते हैं? इमोशंस कैन बी ऑफ एंगर, ऑफ हेटर्ड, जॉय, प्लेयर, हैप्पीनेस, ठीक है, ग्लूमीनेस, sadness. These are. Next, states. States can be जो आपकी फिजिकल या फिर आपकी मेंटल रैंक या पोजीशंस को शो करते हैं. ओके, लाइक फ्रेंडशिप, लाइक लेक्चरशिप, यू नो, clerkship, studentship, membership of any library. और नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. सॉरी, जो हमारे पास टाइप थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर व्हाट? एडजेक्टिव इज थर्ड kind of parts of speech. Okay, we have discussed noun, pronoun, and thirdly there is adjective. Adjective is what? Adjective is actually the name of some quality which is actually using to denote or qualify noun or pronoun in order to enhance its meaning, or to you can say define the meaning of noun or pronoun in more clear sense, in more vivid sense. Okay, that is what? That is adjective. Okay, now there are
10 kinds of adjectives. अब एडजेक्टिव की भी 10 काइंड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जाएंगे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव. क्वालिफाइंग एडजेक्टिव एक्चुअली कब यूज होता है? व्हेन इट इज योर एडजेक्टिव इज यूज जस्ट बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. दैट इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव. ठीक है. आई लाइक ओबीडियंट स्टूडेंट्स. Arfa is an intelligent girl. The naughty boy was punished. Naughty boy. Boy is what? Boy is noun. ठीक है ना? Naughty boy. Just before boy. Noun. Just before noun. Just before boy. What is used? Adjective is used. Naughty. क्वालिटी को शो किया है. ठीक है ना? और नाउन को मज़ीद क्लियर किया है. वट काइंड और टाइप ऑफ नाउन इज हेयर. किस किस्म का बॉय? नॉटी बॉय. क्लियर. आई लाइक ओबीडियंट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स नाउन, कॉमन नाउन. ठीक है. आई लाइक ओबीडियंट स्टूडेंट्स. जस्ट बिफोर नाउन, जस्ट बिफोर द यूज ऑफ नाउन. स्टूडेंट्स, just before noun, what is used? Obedient. That is actually what? Quality of the students. What kind of students? I like obedient students. Qualifying adjective. Arfa is an intelligent girl. Okay. Arfa is what kind of girl? Intelligent girl. Qualify हो गया, clear हो गया, more understandable हो गया. Arfa is what kind of girl? Intelligent girl. Just before girl, that is common noun. Intelligent girl. Intelligent is what? Qualifying noun. ठीक है. जो आपके नेक्स्ट कमिंग नाउन या फिर प्रोनाउन को मज़ीद क्लियर कर देता है, उसके मीनिंग्स को मज़ीद क्लियर कर देता है. दैट इज क्वालिफाइंग नाउन. Now, ये थे हमारे पास क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स और यू कैन से द क्वालिटी एडजेक्टिव्स, जो क्वालिटी बताते हैं हमारे नाउन की. अब हमारे पास है क्वांटिटी एडजेक्टिव्स, जो क्वांटिटी बताते हैं नाउन की या प्रोनाउन की. दे आर कॉल्ड क्वांटिटी एडजेक्टिव्स. वो कौन से हैं? लाइक मच, मोर, वेरी, एनी, लिटिल, सम. दीज आर व्हाट? क्वांटिटी एडजेक्टिव्स. दे आर यूज्ड टू डिनोट क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड क्वांटिटी एडजेक्टिव्स. I took some milk. Milk is noun. Some milk. Some quantity को शो किया. कितना? थोड़ा सा दूध लिया मैंने, थोड़ा सा दूध पिया. Some is what? Quantity adjective. I cannot give you any milk. Milk is what? Noun. Just before the noun, what is used? Any. I cannot give you any milk. तुम्हें थोड़ा सा भी दूध नहीं दे सकती, बिल्कुल दूध नहीं दे सकती. Any is what? क्वांटिटी. क्वांटिटी को शो किया है. किसकी? मिल्क की, नाउन की. समझ में आ गई ना बात? देन थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और नंबरल
एडजेक्टिव्स। नंबरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नंबर्स को शो करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की, डिजिट्स में बताते हैं, फिगर्स में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसके मीनिंग्स को, फिगर्स में, डिजिट्स में, नंबर्स में। दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। लाइक I have 2 pens. I have 3 caps. You have 2 cup of tea. So ये 2, 3, 1, 6, these are what? These are numbers. ठीक है? They are used to denote the quantity but in numbers. Okay? Demonstrative adjectives अब क्या होते हैं? They are used to denote, or you can say, the meaning of thing or person more clear. Okay? किसी भी चीज़ के नाम को, ये चीज़ इंसान के नाम को या किसी भी चीज़ के नाम को मज़ीद क्लियर करने के लिए, उस पर मज़ीद लाइट थ्रो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट करना, हाईलाइट करना, यू नो। दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, यू कैन से, बट दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। ये वाला, दिस पर्टिकुलर वन, ये बॉक्स बहुत हैवी है। दैट बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट कैन बी, बट दैट बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। डिमॉन्स्ट्रेट किया कि दैट बॉय, नो अदर वन, नो अदर बॉक्स, दिस बॉक्स, दैट बॉय। These boys are very hardworking. You can say boys are very hardworking. These boys are very hardworking. कोई और नहीं, these one. So these, those, that, this, these are what? Demonstrative pronoun. Demonstrate करने के लिए, किसी चीज़ को stress out करने के लिए, किसी चीज़ को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए, उसकी मीनिंग्स को, पर्सन और थिंग्स के मीनिंग्स को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए, उनकी कैटेगरी को, उनके स्टेटस को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि स्पेशल ये चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Distributive adjectives are what? They are used to separate or distribute the class of person or things. ठीक है? Like every, each, every student, each pen is of good kind. Every student of this class is hard working. These, every और each जहाँ पे सेंस हो, these are what? कौन से एडजेक्टिव्स हो गए ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली द वर्ड्स वी यूज टू डिनोट द सेंस ऑफ क्वेश्चन, है ना। बिफोर नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन से पहले क्वेश्चन जब आप प्रेस करते हैं तो जो वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक हु, whom, whose, what, which, where, when. These are what? Interrogative adjectives.
Understood? Got it? Students, are you listening? सो तो नहीं गए? Possessive adjectives क्या होते हैं? Possessive adjectives are used to show the possession of noun or pronoun. ठीक है? This is my book. It is your pen. These are my or our class fellows. They are your friends. So your, our, my, their, these all words are used to show possession. मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, ये सब जो हैं ये क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं. दीज आर व्हाट? पोजेसिव एडजेक्टिव्स. Emphasizing adjectives is another kind of adjective. Emphasize कहते हैं किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस डालना. To lay stress. To make stress upon particular noun or pronoun. उनको स्ट्रेस आउट करने के लिए, उन पे एम्फसाइज डालने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग adjectives. Like on, very. This very person, I don't like him. This very book, I love reading it. I did it with my own hands. समझ आ गई बात की? वो आपके वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स जो एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेशल किसी चीज़ पे स्ट्रेस जब आप डाल रहे होते हैं, वो स्ट्रेस को जो शो करते हैं, डिनोट करते हैं, वो वाले वर्ड्स क्या हैं? कौन से एडजेक्टिव्स हैं? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है? Exclamatory adjectives. Exclamatory adjectives are actually the words to mention or show your emotions. Outburst. ऐसे emotions you can't stop explaining them. You can't stop showing them. आप रुक नहीं सकते. आप जब देखते हैं तो at once आप अपनी फीलिंग्स को शो कर देते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी इंटरनल फीलिंग्स को शो कर देते हैं, एक्सक्लेम करते हैं फौरी तौर पे. व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ नाइस शॉल यू आर वेयरिंग, व्हाट अ नाइस कैप, हाउ ब्यूटीफुल यू आर. So these how and what, when we use these two adjectives in a sense to exclaim any emotion of yours, that is called exclamatory adjectives. Okay? So that's all for today. We have discussed parts of speech and what kinds of parts of speech we discussed, noun and its kinds, then pronoun and its kinds, then
adjective and its kinds. ठीक है, these are the parts of speech and along with their kinds or categories or types, you can say. Hopefully you have got the main point, main concept, main idea, or good understanding of the lecture. So keep to clear your logics and concepts. Moreover, नाउन और एडजेक्टिव्स के जो काइंड्स आज हमने डिस्कस किए हैं, प्रोनाउन की क्लास लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है. You can find it from there. And today we have noun and its kinds, adjective and its kinds. ठीक है, that's all for today. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Keep me remember in your prayers and good luck. Allah Hafiz.